Okay, we'll start the question number 26 of rotational motion objective. Before that, I want to request you that download the assignment from the link given in the description, and then first to try at least twice each question, then you see the video solution, then it will be more effective, it will be beneficial. You will develop the habit of solving numericals. You will not do the mistakes, silly mistakes, and your reflexes will be increasing, and you will be doing the question shorter interval of time, and thought process will be developed. Okay, chaliye question number 26 we'll see. Here constant torque of this value turns the wheel of moment of inertia so and so about an axis through the center. Find the angular velocity of the wheel after 3 seconds. So first torque is given, moment of inertia is given, then we have to find out, we have to what is called find out alpha first, and then rotational kinematic equation, tau is equal to I alpha. Okay, we got the alpha, then rotational kinematic equation, omega 1 is 0 starting from rest. So this will be the answer. Question number 27 we'll see. Torque is given, mass is given, moment of inertia is given, and time. The angle covered, angle means theta निकालना है in time interval of 10 seconds. So again find out the we will find out the alpha first, tau is equal to I alpha, then we use the rotational kinematic equation, theta is equal to half alpha t square, omega is 0 initial. So theta mass is not required here, so we will get the right answer. Then question number next is, horizontal force F is applied such that block remains stationary. Block remains stationary. This is the useful condition. Then which of the following statement is false? False निकालना है. So let's see. Okay, for this I want to explain you the points separately here in this notes. See here, horizontal forces applied, so normal reaction will be like this, or it will be above this or below this. Tell me. It will not be here. Let's see why. First you see the force will be balanced by mg. This first option is given. Then torque about the center of mass, you see. This it will be 0, it will be 0. If you take the normal reaction, it will also be 0. So this frictional force will turn it like this. It will not be in equilibrium. Therefore torque will come down here. It will produce, normal action will come down here. It will produce the opposite torque about the center of mass. Clear? Let me explain you. If friction is producing the torque about center of mass, other torques are balanced. F and N is 0. F and mg is 0. Torque uska normal action comes down here. So about center of mass, it will turn the block like this. So normal action will balance it like this about center of mass. Though it has to come down, normal action will be slightly downward from the center of mass. So that is what is the concept here. Let's see one by one options. F is equal to mg. Of course F is here, mg is downward, because F is the force of friction. Because the equilibrium, vertical equilibrium के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, horizontal equilibrium के लिए F should be equal to n, right? ये भी सही है. Third, force will not produce torque about center mass. We should mention the point. So of course force will not produce, n will not produce torque about center mass. No, n will come down and will produce the torque about center mass to counteract the torque of force of friction. About center mass should be there, otherwise n will produce the torque about any other point. यहाँ से torque produce करेगा वो, but center mass से बात हो रही. तो D is not correct and other three are correct. तो यहाँ पे देखते, thin circular ring of mass m, radius r, rotates about the axis with the constant angular velocity omega. ठीक है. 4 objects each of mass m are kept gently on to the opposite ends of the
टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम है ना निकलना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज नो टॉर्क विल एक्ट ऑन द सिस्टम, है ना। तो I1 ओमेगा 1 पहले रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आर स्क्वायर। बाद में हमने 4 पार्टिकल और रख दिए, तो उसकी डिस्टेंस भी आर स्क्वायर, तो एक साथ हमने लिख दिया, ठीक है। सरकमफ्रेंस पे है, तो ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेट फाइनल एंगुलर स्पीड बिकम्स ओमेगा डैश, तो ये ओमेगा डैश सॉल्व कर लिया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Thin circular disk of mass m, radius r is rotating in horizontal plane about an axis. Rotating in horizontal plane about an axis passing through the center and perpendicular to its plane with the angular velocity omega. If the another disk of same dimensions but of mass m by 4 is placed gently on the first disk coaxially, then new angular velocity, ठीक है। पहले एक ही रोटेट कर रही थी, उसका I1 लिखा एंड ओमेगा 1, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में दोनों रोटेट करने लगी। सेकंड वाली का मास 1/4 है, रेडियस डायमेंशन सेम है, तो इसलिए रेडियस सेम लिया। तो दिस विल बी, सॉल्व कर लेंगे इसको, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 4/5 ओमेगा डैश इज 4/5, ठीक है। सी ऑप्शन है, कम हो जाएगी ना जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, न्यू एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, LCAM, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेट डांसर dancing on the smooth floor is spinning about vertical axis with her arms folded with the angular velocity 20. When she stretches her arms fully, the spinning speed decreases to 10 radian per second. Decreases is 10 radian per second. If I is the initial moment of inertia, then new moment of inertia will be, तो फिर से I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2, बिकॉज नो अगेन एक्सटर्नल टॉर्क, इंटरनल शी इज यूजिंग इट्स हर इंटरनल एनर्जी टू चेंज दिस पैरामीटर्स, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1 और ये I डैश ले लिया, तो I डैश विल बी ट्वाइस I, है ना, इसको नीचे कैंसिल हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने डबल कर लिया, इसलिए उसकी एंगुलर स्पीड हाफ हो गई, ठीक है। बाई स्ट्रेचिंग हर लेग्स एंड हैंड्स आउटवर्ड, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 to ओमेगा 2 विदाउट अप्लाइंग ए टॉर्क बट ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द रेशियो ऑफ जायरेशन इन 2 केसेस, ठीक है। तो I1 फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और ओमेगा के की वैल्यू रूट I/m होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला ये होता है, उससे I निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया। मास एक ही बॉडी है, तो मास विल गेट कैंसल, है ना, तो विल गेट दिस रेशियो। नेक्स्ट वन इज if the radius of the earth is suddenly becomes half of its present value, then duration of the day. Again law of conservation of angular momentum, and ओमेगा को 2π/t लिखेंगे, where t will be the time period, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, 2π दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इफ़ यू डोंट नो द अदर मास रिमेनिंग सेम एंड डोंट नो द फुल फार्मूला, then also you can just do the question. Whether you don't remember the moment of inertia of the earth, no problem, but dimensionally it will have the one dimension of mass or 2 dimension of radius. मास तो कैंसिल होने वाला, रेडियस r स्क्वायर, और यहाँ पर r/2 स्क्वायर, रेडियस उसने बोला है आधी हो गई, है ना, तो r/2, यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे r/2 का स्क्वायर अपॉन न्यू टाइम पीरियड T2,
और T1 बस सॉल्व कर लेंगे, T1/4 आ जाएगा और ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज ड्यूरेशन ऑफ डे इज 24 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर्स बचेंगे अगर रेडियस उसकी हाफ हो जाती है श्रिंक होके। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज E and its moment of inertia is I. The angular momentum is okay. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और इसमें हमने I से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ऊपर I स्क्वायर होगा, नीचे I होगा। तो दिस टर्म इज I ओमेगा स्क्वायर इज एंगुलर मोमेंटम L स्क्वायर। तो ये आ गया रिलेशन, यूजफुल रिलेशन है, इसको लर्न भी कर सकते हैं या चेंज कन्वर्ट करना आना चाहिए, बिकॉज इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 34 इज ओवर। 35 particle of mass m is rotating in a plane in circular path of radius r, its angular momentum is L, the centripetal force निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर r होता है ना। फिर इसमें हमें चेंजेस करने हैं L के टर्म में, तो L देखते हैं। L का फार्मूला mvr होता है सर्कुलर मोशन में, v को हमने ओमेगा r पुट किया, तो ये तुम्हारा हो गया r स्क्वायर, m ओमेगा r स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम ले आएंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना है, तो m एंड r क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r क्यूब, पहले एक r है तो r 4 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट L स्क्वायर, और नीचे एज इट इज। तो ऑप्शन नंबर डी सीम्स टू बी द राइट ऑप्शन है ना। ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आना चाहिए ठीक से, देन ओनली यू कैन डू इट। 36 two disks of moment of inertia I1 I2 and angular speed omega 1 omega 2 are rotating along the collinear axis, ये axis है यहाँ पर, axis is right, passing through their center of mass and perpendicular to their plane if the two are made to rotate combinedly along the same axis of rotation, then kinetic energy of the system will be. Let's see how to do it. फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल ये है, फाइनल में लेट एंगुलर स्पीड बिकम्स ओमेगा डैश, कंबाइन रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइन ले लिया हमने, तो ओमेगा डैश मिल गया। तो और न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ I1 प्लस I2, दे हैव बिकम सिंगल बॉडी है ना। ओमेगा डैश की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये आंसर आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट मैं और बता दूं, लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। सपोज ये जो है अपोजिट उससे घूम रही है, पहले ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है अपोजिट, देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होगी और बाकी सेम रहेगा। इधर तो बाद में जिसका एंगुलर मोमेंटम मोर है वो डोमिनेट करके अपनी डायरेक्शन में घुमाएगी, है तो कंबाइंड वाली हो जाएगी ये, है ना। तो डिपेंडिंग करता है ओमेगा डैश कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है तो हम बोलेंगे भाई इस जिसका प्लस लिया था उसकी डायरेक्शन में घूम रही, माइनस आ रहा है तो जिसका माइनस लिया था फाइनल डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट्स वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी यूजफुल फॉर यू, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th, लेट्स सी। The position of the particle is given by position vector this and linear momentum is this, the angular momentum is perpendicular to। तो पहले नहीं पता लगेगा, पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट होता है r क्रॉस p, इसमें r पहले आता है कन्वेंशनली, यू कैनॉट चेंज दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो r हमने पहले ही रखना है इवन इफ दे आर गिवन बाद में। तो डिटरमिनेंट से ये हमने फर्स्ट एलिमेंट इनटू रिमेनिंग जो है रिमेनिंग एलिमेंट जो उसके रो एंड कॉलम के निकाल दो, ये बचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को लास्ट, इसको इससे माइनस, बीच में माइनस भी आता है, ऐसे ही यहाँ पे माइनस, फिर इसके निकाल दो रो एंड कॉलम के एलिमेंट, इसको फर्स्ट को लास्ट वाले से माइनस, इसको इससे, सिमिलरली के
इसके वो निकाल दो फर्स्ट को लास्ट वाले से एंड माइनस अब रिमेनिंग वाले, तो दिस यू नो। तो ये बचा है अपना, ये आंसर आया। तो ये कौन से प्लेन में है, जे कैप एंड के कैप, तो वाई एंड जेड प्लेन में है ना, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन कैसा होता है, देखो ऐसे, सपोज हमने एक्स यहाँ लिया, वाई यहाँ लिया, जेड यहाँ लिया, तो ऐसा कुछ वेक्टर कुछ ऐसा है ना। माइनस है तो नीचे होगा ऑफ कोर्स, बट अगर हम सिंपल उसमें बात करें तो एक्स वाई एंड जेड, तो ये वेक्टर है इस तरह से, ये प्लेन है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो ये इधर आई कैप नहीं है ना, इस प्लेन में होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम फाइनल आंसर देख के। अगर इसमें सपोज जे एंड आई होता, के नहीं होता, तो एक्स एंड वाई प्लेन में होता विच इज़ परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव टू डिटरमाइन द थिंग्स, ठीक है। तो 38 देखते, अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, ओके, देन एंगुलर मोमेंटम। तो पहले हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखा आई ओमेगा, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से आई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, आई कितनी आई ये, तो ये हमने आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओमेगा एज इट इज, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई एफ के टर्म में लिख सकते हैं, बट डजंट, 2 पाई की तो डायमेंशन होती नहीं। तो फाइनली ये आ गया रिलेशन, कैंसिल होके नीचे ओमेगा बचा 2k, काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो L/4 1/4 हो जाएगा। गॉट इट? चेंजेस करने पड़ेंगे इस फार्मूले में, डायरेक्ट नहीं है ये, ठीक है। 39th, thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with the constant angular speed omega, and two objects of mass m are attached gently to opposite sides, opposite ends of the diameter of the ring. The ring now rotates. Again, law of conservation of angular momentum. There are many questions asked in this topic. तो फिर से I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, इनिशियली वो रिंग है केवल, बाद में 2 मासेस और अटैच कर दिए तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, ठीक है। न्यू एंगुलर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास m is moving with the constant velocity along a line parallel to x axis, its angular momentum with respect to origin, ऐसे जा रही है ना, ये r होता है और ये ऐसे, ये r होता है, ये भी r, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये तुम्हारा p होता है, ये एंगल होता है। तो एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, r भी चेंजिंग, r बढ़ रहा है और थीटा कम हो रहा है, तो उससे कंक्लूड करना मुश्किल है। तो वील सर्च फॉर द अदर फार्मूला, मतलब अदर सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो L जो है R परपेंडिकुलर इंटू P, R परपेंडिकुलर क्या, ये P है, M V इज इक्वल टू P होता है ना, P इज इक्वल टू M। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ओरिजिन से, ऐसे लाइन ऑफ मोशन जो होती है ना, उस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये वैल्यू R परपेंडिकुलर है, जो कि चेंज नहीं होगी। R परपेंडिकुलर विल बी फिक्स, M इज आल्सो फिक्स, V इज आल्सो फिक्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आल्सो, है ना, ये चेंज नहीं होगी, उसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे ही है। तो ऑल 3 आर फिक्स, देयरफॉर कांस्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड, और इसका एंगुलर है ये, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन द horizontal plane as shown, the magnitude of angular momentum of the disk about the origin, ठीक है, about the origin, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एक तो ये ऐसे जा रही, ट्रांसलेशन मोशन से होगा, और दूसरा रोटेट कर रही है, 2 एंगुलर मोमेंटम हो गया उसमें,
तो एक तो रोटेशन का होगा दैट इज़ आई ओमेगा, दूसरा ट्रांसलेशन मोशन का होगा आर परपेंडिकुलर इनटू पी। तो आर परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से लेंगे ऐसे, तो दिस परपेंडिकुलर विल बी रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आई ओमेगा, आई की वैल्यू पुट कर देंगे, डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर। रोलिंग में हमेशा उनका जो नेचुरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही पुट किया जाता है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। और ये जो एम वी आर है तो वी को हम लोग ओमेगा आर लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर सिमिलर टर्म्स होगा, तो 1/2 + 1 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगर सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहा होता है और आगे ऐसे चल रहा होता है तो माइनस हो जाता है, ये एक माइनस लेना पड़ता है हमें, एक दोनों अपोजिट राइट हैंड रूल से दे सकते हैं इसको। फिर इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर आता है और इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अंदर आता है, तो यह बीच में माइनस आ जाता है, एक प्लस एक माइनस, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज प्लस देते हैं जनरली हम लोग। ठीक है, तो सी द रोटेशन ऑफ दिस, ट्रांसलेशन मोशन इज दिस साइड एंड रोटेशन ऐसे है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। लेट्स सी, चाइल्ड इज स्टैंडिंग with the folded hands at the center of the platform, ठीक है, rotating about its central axis, the kinetic energy of system is K, rotational kinetic energy. Child now stretches his arm so that moment of inertia of the system is doubles, है ना, stretches out करेगा तो डबल हो जाएंगे moment of inertia of the system। तो kinetic energy of system निकालना है, तो लेट्स सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन यूज़ कर लिया यहाँ पे, देखो L²/2I पीछे सीखा था हमने, तो L विल बी इससे इनफैक्ट इससे हमने यहाँ पे आ गए, ये वाला रिलेशन बना लिया। तो इसमें देखो क्या है, मोमेंटम इनर्शिया डबल कर लिया उसने इनिशियल वैल्यू का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करके हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे पहले। ठीक है, अदरवाइज टू गो टू द मेन फार्मूला उससे भी कर सकते हैं, I1 ω1 = I2 ω2, उससे तुम्हें ω2 मिल जाएगा, और फिर न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल लो, हाफ I टोटल इंटू ω2 का स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। Let's see 43 question. Rod PQ of mass m, length L is hinged at end P, यहाँ पर हिंज है, यहाँ से रोटेट कर सकती है। The rod is kept horizontal by the massless string, okay, at point Q. When string is cut, the initial angular momentum, angular acceleration of the system. तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे कट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट करने पड़ेगी, तो कौन रोटेट कर रहा है, इसका फोर्स ये mg, टॉर्क, उससे जो टॉर्क बनेगा यहाँ तक का आर परपेंडिकुलर रहेगा, तो टॉर्क रोटेट कर रहा है, तो दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, से अल्फा मिल जाएगा हमें। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखो टॉर्क के दोनों फार्मूले, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आर परपेंडिकुलर अभी हमें L/2 लेना पड़ेगा, बिकॉज जो वो है वेट mg यहाँ पे लगता है सेंटर ऑफ मास में, ये डिस्टेंस चाहिए, तो दिस इज L/2, दैट इज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं उसके बाद। तो L/, इनिशियल ये है, फाइनली इट विल चेंज, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा, इसलिए इनिशियल निकाल सकते हैं। फाइनल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा उस पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा, वेरिएबल कंडीशन हो जाती है, फिर हमें वेरिएबल कंडीशन के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, रॉड एंड से रोटेट करें इसलिए 1/3 ml², तो अल्फा विल बी दिस मच, ए ऑप्शन है, दिस इज द अल्फा। अगर हम एक्सेलेरेशन निकालें वन एंड का, इफ़ यू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ द अदर एंड, ये जो फ्री एंड है उसका ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो आर अभी पूरा लेना पड़ेगा यहाँ तक का, क्योंकि ये एंड की बात हो रही है, तो एल अल्फ़ा
ठीक है, तो ये हो जाएगा एल अल्फ़ा। तो एल की वैल्यू पुट, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, एल एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 3g/2। तो इट इज़ मोर देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वाला एंड इनिशियली फ्री फॉल से भी फास्ट गिरेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ जी आता है, 1.5 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, तो दिस एंड नॉट सेंटर मास, सेंटर मास के लिए, सेंटर मास के लिए फिर L/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन कि दैट एंड विल बी फॉलिंग फास्टर देन द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द point masses m1 m2 point masses m1 m2 are placed at the opposite ends of the rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about the axis perpendicular to it. The position of the point P, कौन से पॉइंट से रोटेट करना है, P on this rod through which the axis should pass so that work done to set the rod rotating with the angular velocity omega naught is minimum. तो वर्क डन इज मिनिमम। ठीक है, तो वर्क डन इज मिनिमम, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे देखो, और आई शुड बी मिनिमम। आई इज मिनिमम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो आई मिनिमम होता है, तो सेंटर ऑफ मास निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 h2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इससे ये आ जाएगा आंसर, है ना। लेफ्ट हैंड ओरिजिन पे ही ले लो, लेफ्ट हैंड से चाहिए तो वो ओरिजिन पे हो जाएगा, वहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर ये दिया है, द वैल्यू ऑफ A for which angular momentum about the origin is conserved. तो angular momentum about the origin is conserved means torque should be 0, है ना। तो टॉर्क निकाल लेंगे इसका R क्रॉस F से और उसको 0 कर देंगे। जो इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के बाद अल्फा इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब टॉर्क 0 होता है। तो टॉर्क का आर क्रॉस एफ होता है, डिटरमिनेंट से निकालते हैं, डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट, इफ़ यू डोंट वांट टू सॉल्व, देखो शॉर्टकट मेथड बताते हैं। इस वेक्टर और इस वेक्टर को ध्यान से देखो, इसमें साइन रिवर्स हो गए इन दोनों के। तो इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है। ठीक है, ठीक है। तो जब वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उसके कोएफिशिएंट्स का रेशो इक्वल होता है, यानी ये पैरेलल होते हैं, बस पैरेलल होते हैं तो कोएफिशिएंट का रेशो इक्वेट करके सॉल्व करना है। एंटी पैरेलल है तभी भी कोएफिशिएंट का रेशो। तो इसमें देखो, ये तो तुम्हें यहाँ से कैसे पता लगा, देखो इसके कोएफिशिएंट देखो ध्यान से, ये 3 है तो उसका डबल है 6 और माइनस भी है, ये 6 है तो उसका डबल है माइनस भी है। तो बस इससे इक्वेट कर सकते हैं हम, एंटी पैरेलल है तो ये एडवांटेज ले सकते हैं। अल्फ़ा अपॉन 2 लिखा हमने और 3 अपॉन -6 इसका, इसके और इसके का कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने से 6 बाई -6 तो -1 आ रहा है। गॉट इट? तो ये डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है टॉर्क 0 है, ये भी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, टॉर्क 0 है जिसका मतलब कोएफिशिएंट के रेशो इक्वल होने वाले हैं, है ना। या तो एंगल तुम्हारा 0 डिग्री होगा या 180 होगा, दोनों केसेस में कोएफिशिएंट्स जो हैं इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। गॉट इट? तो वेक्टर नॉलेज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 जो है, लेट्स सी, one square sector is cut from the uniform circular disk of radius r. The sector has the mass m. इतने का मास m दिया है। ठीक है, it is made to rotate about the line perpendicular to the plane and passing through the center of the original disk. ये original disk का center है।
इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। ये क्वार्टर डिस्क है ना, 1/4 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/4 हो जाएगा फुल डिस्क का। आई विल बी 1/4 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल डिस्क। तो फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपरली पुट कर दो, दैट इज द की पॉइंट हियर। तो हाफ इंटू मास ऑफ द फुल डिस्क, फुल डिस्क का मास कितना होगा 4m, क्योंकि क्वार्टर का m है तो फुल डिस्क का 4m आएगा, 1/4 का m है तो 4 फुल डिस्क का 4m आएगा। तो ये जो 4 होता है यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 mr² बचता है। तो वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जैसा डिस्क आता है, हाफ mr²। सपोज 1/6 होता है तो यहाँ पे 6 आता है, यहाँ भी 6 आता है, वो फिर से कैंसिल हो जाता है। तो कितना भी सेक्टर रहने दो, कितना भी पार्ट रहने दो, तो आंसर हाफ mr² होगा, प्रोवाइडेड मास ऑफ दैट पार्ट इज m। दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। 47th, ये कंसिडर बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड टू द लाइट रिजिड बॉडी एट वन ऑफ इट्स एंड्स, है ना। What would be its angular velocity? ठीक है, ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंप्लीट करा दूँ इसमें। लेट मी सी, कंसिडर बॉडी ऑफ मास, बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय द लाइट रॉड एट वन ऑफ इट्स, नहीं, एट इट्स एंड्स, एट इट्स एंड्स है, दोनों एंड पे है। व्हाट वुड बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी इफ इम्पल्स इज गिवन? ओके, लेट मी सी, हाँ नीचे नहीं, मिस हो गया। इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स इज गिवन एट वन एंड एज शोन। इफ लीनियर इम्पल्स इज गिवन एट वन एंड, इफ, ओके आई एम राइटिंग हियर, नीचे लिख रहा हूँ। If linear impulse is given at one end as shown, ठीक, तो let's solve this। देखो इसको, we know that linear impulse is equal to change of linear momentum। तो यहाँ से देखो, इसको एंगुलर इम्पल्स बनाएंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन द लाइंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना। ऐसे हमने ये बना लिया। एंगुलर इम्पल्स में क्या होगा, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो एंगुलर इम्पल्स बनेगी कितनी, सेंटर ऑफ मास से r परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इम्पल्स, है ना, r क्रॉस p, और p जो है लीनियर इम्पल्स, आई मीन इम्पल्स की इक्विवेलेंट, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। तो वो हमने एडवांटेज दिया। तो ये हो गई तुम्हारी इम्पल्स, है ना, एंगुलर इम्पल्स, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये L/2 सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, इंटू mv दिया है, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, इनिशियल रेस्ट पर थी वो। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो 2 मास है, आई कितना होगा m इंटू दिस स्क्वायर, दिस इज L/2, ऐसे ये भी m इंटू दिस, पॉइंट मासेस के लिए mr²। तो सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं हम लोग सारे पॉइंट्स, तो सेंटर ऑफ मास फ्री बॉडी में सेंटर ऑफ मास से ही लेते रोटेशन। डिजिट फिक्स है तो फिर वहीं से लेना पड़ता है, पियोटेड है तो पियोट पॉइंट से लेना पड़ता है। तो ये पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है, ठीक है। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में 90 डिग्री टर्न हो जाएगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, π/2 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है v/l, तो t विल बी πL/2v। 90 डिग्री टर्न होने में इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो दैट इज द एडिशनल पॉइंट हियर, गॉट इट। तो 47th हो गया। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Next question, the ring of
radius 0.5 and mass this much is rotating about its diameter, diameter से rotate करना है, with angular velocity of 20 रेडियन पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी. वैसे तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, बट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिस्टेक होने के चांस है. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई रेडियस, आई जो है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन डायमीटर से हाफ एम आर स्क्वायर होता है. तो दैट्स व्हाट इज द की पॉइंट. ओमेगा रेस्ट थिंग्स यू कैन जस्ट पुट इट. यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, हाफ मिस हो जाता है. ठीक है, तो बी केयरफुल. ओके, मेरा मिस हो गया था इसलिए आई एम वार्निंग यू. अच्छा, सेकेंड आंसर भी है, विदाउट टू भी ये लिख लेना, एम आर स्क्वायर लेके लिख लेना, वो भी मैच हो रहा है इसके साथ. ऑप्शन इज देयर. जनरली इट हैपेंस, व्हाट एवर द मिस्टेक यू डू, दैट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about its axis passing through its center is k. Center of mass is k. If radius of the ball is r, then the fraction of total energy associated with the rotational energy will be, है ना. तो रेशियो निकालना है इसका. देखो रोलिंग में एक पॉइंट याद रखो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ये इससे चेंजेस होंगे. ओमेगा अगर ये से कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारे कॉमन टर्म्स. ठीक है, निकालना क्या है, देखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल एनर्जी. मतलब इसका ये मतलब होता है कि रोटेशनल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी. कितना टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी है, तो रोटेशनल एनर्जी अपॉन टोटल. तो रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल में दोनों आ जाएंगी. फिर चेंजेस कर लो इसको, हमें या तो वी हटाओ या ओमेगा हटाओ, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी आएंगे नीचे भी. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओमेगा रहने दिया, यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है. तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये. ठीक है, तो ये बचेगा. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कंपेयर, बस यही याद रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से चेंजेस करने. क्वेश्चन नंबर 50. स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg एंड डायमीटर 1 meter rose without sliding with the constant velocity of 5 meter per second. Calculate what is the ratio of rotational kinetic energy to the total kinetic. Again similar question है. तो डायमीटर का वैसे रोल है नहीं, मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पर. ओके, पहले आंसर निकाल देते हैं, फिर से रोटेशनल अपॉन टोटल, ऊपर वाला रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं. अभी के की वैल्यू व्हाट इज कॉल्ड, जो स्फीयर है उसका के जो है √2/5 आर होता है. आर होता है रूट के अंदर, आर बाहर होता है, स्क्वायर कर लेंगे तो ये आर तो कैंसिल होने वाले सब में, तो ये डिजिट बचेंगी. तो 2/7 आ रहा है. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, न तो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, न तो मास पे डिपेंड कर रहा है, न आर पे डिपेंड कर रहा है, न वेलोसिटी पे. चाहे छोटा हो स्फीयर, चाहे बड़ा हो, चाहे अर्थ हो, है ना, चाहे वो बॉल हो, सिंपल. तो सभी में यही आंसर आने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स. तो डायमेंशंस पे डिपेंड, डायमेंशंस भी इनफैक्ट जो है वो भी कैंसिल हो रही है. लास्ट में आर वो भी हट जाता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसका जो वही बचता है बाद में ना. शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ बॉडी पे ये रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करता है. तो कौन सा है, सॉलिड स्फीयर है, छोटा बड़ा, सबका रेशो सेम आने वाला है. अगर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे ओके रेडियस इज डबल, तो व्हाट इज द न्यू रेशो, तो सेम रहने वाला है. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल. देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 51st क्वेश्चन. ओके, थैंक्स.